So once again, welcome to our discussion on the put. And after going through several interaction, dimensions, number of uplas, the frequencies, the rectangular or the circular, down the earth, above the earth. Nowadays one thing more is going on, that is the people are making that particular pit below the earth or above the earth, and they are using their muffle brick. That should be in your notice. It is not the direct layer of the earth, right? Suppose it is here, anyone is preparing Gajput or Mahaput, so here they are fixing muffle bricks. And this dimension is as per the 1 Raj Hast, 2 Hast, 91 centimeter, 56 centimeter, etc. And here is the pit, earth, and here is the muffle brick. This is also in practice. And you may understand the reason for this. It is very simple. That is the regulation of temperature. In certain amount of the energy, the quantum of heat must be there. And because if this is the muffle brick, then certainly those durations will be less, those high temperature range may be high, but all these things we have to see and we have to cover up that what's going on. Here you just go calculate, apply the pyrometer and see the higher temperature range is going on and what is the duration. Then you may decide that application of muffle brick is same or it is different. Wait for 45 minutes. So here, if it is like this, then what do you think, whether the muffle brick is applicable or not? What is your idea? Whether you will advocate it, whether you will advocate it, or you will stand for the no, there is no need of muffle brick, we will go for the directly to the earth, above the pit or the below the pit. See here in our old department back, there was a simple bricks, and the many departments there is the simple brick. If they are making the put above the earth, okay. What's your idea particularly? What you prefer? Below the earth. Okay, I agree, below the earth. Below the earth with the muffle brick or without muffle brick? Why? Very simple. It will make easy the maintenance of temperature. Okay. So after all that, and in that paper of the 2006, which is the base of our discussion, put the quantum of heat, written by Dr. Swapna Reddy and I myself. That paper, if you go through the discussion which was published in 2006 and what the discussion and what the perspective of the knowledge we have now, it is something different. Okay. But I am willing to summarize both what has been reported or what has been published in 2006 and what is the status in the 2023. But 2-3 principles are very common there, and those principles where I want to emphasize you and I invite your attention. Since last our 8 interaction, the word I use continuously, the laws of thermodynamics. The laws of thermodynamics. The total there are
three law. Okay, first, second, third. I am just leaving first and second. I am coming here. It is the Hess law of thermodynamics. And this idea, of course, we have gone through a little bit about all these energy business in our books of science up to the 10+2 level, or if any one of you are graduated, then they are also under the physical chemistry, or the books in the pharmacy, they are the books of the pharmaceutical, physical pharmaceutics. What is what? Physical pharmaceutics. And just I was referring you a book of the R. Manvalan, right? And which cost is now 4,895. And this is the book which was into 2002, right? And luckily, see, who are listening or who are viewing, and you all, your thought process develop much when you expose yourself to the other branch of knowledge, right? So when I was in Jamnagar, I was deputed for 21 days. I was selected for a program of the reorientation course for the teachers of pharmaceutical sciences, modern M Pharma PhD, right? And that university was Annamalai University, Chidambaram. When I saw its advertisement that into the Pharma Times. How many of you are member of the Indian Pharmaceutical Association, IPA? Have you membership of the IPA Mumbai? No, not at all. But when I was like you, and still I am learning, so far I am a student, I was the member of the Indian Pharmaceutical Association, and I am the member of the Indian Pharmaceutical Association, and so I receive Pharma Times regularly. Okay. In the Pharma Times, there was a column, and it is the advertisement. It is published even today, nowadays also, and very good write-ups are there. Fine. Every month, it is the monthly. And the name of the magazine is Pharma Times. If you want to elaborate your knowledge much, then you must have this annual subscription. The being life member of the Pharma Times, I have completed 20 years. So now the book is not coming to us, coming to me. Otherwise, see, as a life imprisonment is the 14 years. It is not the end of the breath as per the Indian Penal Code, right? The life sentence. The same way, the life membership is standing for 20 years. So I was member back in the 1998, and now it has completed 20 years. So I am not receiving a copy of Pharma Times nowadays. Okay? But if you are interested to enhance your knowledge, then you must have these things where something going on related to your field and your subject or the thrust area. In there, the Pharma Times advertisement that of the reorientation course, I applied. My university, I mean Gujarat Ayurveda University, IPGTR, firstly hesitated to forward my application because that was not for any or MD Ayurveda. Eligibility was not MD Ayurveda or the MD Ayurveda Rasas and Bhashas Kalpana, that is simply not. But I requested Professor Kulwant Singh, the then Dean, and our Honorable Vice Chancellor, late Professor P.N.V. Kurup, I want to be here, and it will be very much helpful for the advancement of the knowledge of the subject of the Rasas and the Bhashas Kalpana. Then they forwarded my form for selection in the reorientation program of the Annamalai University. Okay. And fortunately, I was selected. See the transdisciplinary approach. Out of 30, 29 was having degree of M.Pharm, modern science, and the PhD from all over country.
because the Department of Pharmaceutical Sciences of the Annamalai University, Chidambaram, is one of the top 5, along with the Munial and the Ahmedabad and the Naipur, and on those days. So that was a very prestigious institute, specifically for the pharmaceutical sciences. So I was selected. Then I went there, lived there for 21 days, learned all the pharmacy, and there were the 2 examinations in between and the final year. And yes, this is on the camera. On the final exam and the between, I was the topper of the examiner. Not because of that I am very much genius or the brilliant. Those all were who were participating with me, they were very easy, casual. What they are being taught, they were knowing. They are just for the reorientation. All were the modern M Pharma and the PhD. For them, few things are new, so they are going on easy way. वो खरगोश और कछुए की कहानी याद है ना पंचतंत्र की? तो कौन जीता था उसमें? कछुआ जीता था ना. तो वही हाल मेरा था. आयुर्वेद का आदमी डरता रहता था कि अरे कहीं बेइज्जती ना हो जाए, फेल ना हो जाऊं, तो बहुत पढ़ता था. और पढ़ने का नतीजा ये निकला कि मैं क्या हुआ, उस एग्ज़ाम में टॉपर हो गया. तो वहाँ पर मुझे ये बुक मिली और काफ़ी इंटरेक्शंस हम करते थे. इसलिए मैं अक्सर अपने पीजी पीएचडी को लर्नर से बात करता हूँ कि वेयर यू आर गोइंग एंड वेयर इज़ द एक्सपोजर. एंड ऑल दीज थिंग्स व्हेन आई वाज लाइक यू, I went to the Regional Research Laboratory, Jammu, for a 6 days on this experimental training program. You are in the final year. If I ask to you how many training programs you have attended, I know the answer is, or you have attended any training program of the 6 days? Not at all? Yes or no? No, I know. So I am saying, figuring this. You attended conferences, you did tour, but not the 6 days, 10 days training programs. And one notification is just day back yesterday I received from the very prestigious institute from the Chennai, Satyabhama Institute of Technology and the IIT Chennai. They are planning for the 14 days training program on the spectroscopy and the X-ray diffractions and the many more, all the investigative analysis, analytical test. I thought in a mind, for 2 seconds in my mind, which of my PG scholar at the Department of Research, Banaras University, may be willing to go there in the Satyabhama Institute of Chennai. That is a good program. Back 5 years back, I used to send the people for all these training programs, because luckily I am in the wish list of these organizations, because I convinced all those PG PhD scholars to attend these programs of the analytical training program, and they did. So the list is there and my mail ID is there. They are sending me. So it is open. But I thought, why should I convey all these things? Everyone is here to be a good clinician. But this is the problem. Anyhow, जब क्लास में खड़े हो, बात करो, तो बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं ऑटोमेटिकली. तो मुझे ये भी याद आ गया. तो आपका एक्सपोजर कितना है? और बहुत अच्छा कोर्स होगा, वो 14 दिन का है. लेकिन आप कहें तो मेरी तो थीसिस जमा हो गई, मैं क्यों जाऊँ? सेकेंड ईयर वाले कहें कि नहीं, हमको इतना जाना ही नहीं है, हमारा BHU में ही सब हो जाएगा. लेकिन जो जाएगा, जो वहाँ 14 दिन रहेगा, उसका सिलेक्शन होगा, वो कुछ अलग ही होकर निकलेगा. तो जब मैं गया जम्मू, 6 दिन वहाँ रहा, मेरी थॉट प्रोसेस बदली. जब मैं 21 दिन के इस प्रोग्राम में गया, मेरी पूरी थॉट प्रोसेस बदली. मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ. तो आपका जितना एक्सपोजर होगा, जितना आप दूसरे सब्जेक्ट्स के नॉलेज को गेन करेंगे, उतना ही अपने सब्जेक्ट का विकास करेंगे. या दिस इज द फाइनल थिंग. यू कैन अप्लाई द नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स in the advancement of the knowledge of your own subject, right? Only by studying one subject you will not be able to very properly
to make your subject advance. The knowledge of each and every discipline must be inculcated in your parent subject and in the first hand, because a person of the analysis is not knowing anything about the Ayurveda, but you may be who is knowing Ayurveda, who is knowing Rasas Shodhan Maran processes and knowing these analysis, at least a first hand experience. I am not saying that you will be expert in 14 days, but at least the first hand experience, then everything of your persona will be changed and in a very positive way. Okay, so this physical pharmaceutics book is just gifted to me. Here, if you see, this is the lecturer, Department of Rasashastra, IPGTR, Gujarat Ayurveda University, and the author himself presented me. Author was the head of the department. R. Manwalan sir is their head of the Department of Pharmaceutical Sciences, and they were so impressed with my regularity and the punctuality. I always try to bet कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा वो कॉन्फ्रेंस रूम खुलने के पहले, लेकिन 21 दिन में मैं एक दिन भी पहले नहीं पहुंच पाया. पहले हमारा टीचर ही पहुंचता था वहाँ, और वो कोई और नहीं, प्रोफेसर जीपी मोहंता. प्रोफेसर जीपी मोहंता, who happened to be later WHO technical officer, and he is the person who conceptualized the pharmacovigilance. There were the 3M: Mohanta sir, Mana sir, and Manwalan. The department was running as a standard department. So GP Mohanta, I always try to reach before him, but never succeeded. Always GP Mohanta is there. And so I salute, really I appreciate those people. And in this last class of the put, because this book, Physical Pharmaceutics, when I went through the columns of this changed my whole understanding of the put or the bhasma. Okay? So I suggest you, it is not possible to make you understand everything in this next 20-30 minutes, but most of the things I conveyed you. But here if you go to the chapter of the thermodynamics and go through all these, the whole book is very important. You must correlate that which chapter is applied on which form. See here, the thermochemistry, the heat of combustion, Hess law of the heat summation, heat of formation, heat of solution, and all these things, if you try to understand in your language of the rasas and the put, you will get answer of a question. First I am putting the question before you. Always you think in your mind that there are so many methods of the preparation of bhasmas. In some, and the color is the same. Remember the color. Nowhere it is said that the this tamra bhas should be of the white color. It is. But generally exceptions never made rule. So generally if you are preparing tamra bhas, color should be what? Black. If you are preparing abrak bhas, color should be istika churn sankasam. If you are preparing law bhas, color should be pakko jambu phal chaya. Fine. So whatsoever the method you are adopting, the book of the 10th century or the book of the 15th century or the book of the 18th century, the intermediary procedure, the bhavna, the ingredient, the constituents, the liquid material, even the type of the put, mahaput, gajput, right, as per the specification may be different, but the final aim is what? To get a color of the makshi bhas pakko jambu phal chaya. Fine, this is the objective. So that you may think in your mind कि अरे 20 पुट देने में भी बन जा रही है, 15 पुट में भी बन रही है, महापुट में भी बन रही है, गजपुट में भी बन रही है, और क्या बन रही है? पक्को जम्बू फल छाया. तो ये कैसे संभव है? उसका उत्तर यहाँ है. कहाँ है? हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. और इस पेपर को जो मैं बार बार कोट कर रहा हूँ, इसमें देखिए, इसको पढ़िए, पढ़ते हैं इसको. So what is the Hess law? Hess law of thermodynamics states total heat of reaction is constant
total heat of reaction is constant no matter whether the reaction is allowed to take place directly or in stages. क्या वर्ड है यहाँ पर? और in stages, मतलब कि नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ पुट। इन स्टेजेस का क्या मतलब हो गया? इसको एक एक कोरिलेट करिए ना। इन स्टेजेस, इन अदर वर्ड्स, द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। एंड लॉ इज दिस कि फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड, and if you say that now come to the language of the chemistry, if you say that my bhasm is the combination of, for example, marxic, the iron and the cupric oxide sulfide, what oxide ki sulfide, iron oxide cupric sulfide, both are different. Copper will be in the sulfide form, iron will be in oxide form. Then the heat of formation through the heat of combustion, these are the all laws of the thermodynamics, and the final preparation will be the same. This is the Hess law. So whatsoever the methodology you are adopting, given by the Rasat Samuchay or given by the Rastarangani or given by the Rasendra Chudamani for the preparation of Brag Bhasm, Swarna Bhasm, Tamra Bhasm, Rajat Bhasm, if final product is of that color, what I am saying? Color, Varna Pariksha. And then only you will say that this is the this bhasm on the basis of the Varna Pariksha, not the quality control basis of the Apunarbhav, Nirutha, Anjan Sadrish, Rekha Purna, Bharitar. These are what? Quality. The chemical character is depending on the color, right? So if you are not up to you are not getting that color, you are what you are doing? Repeating the put. And this is the law which says, which is established, that the final form, the heat of the formation of the compound will be the same whatsoever method you are applying. बात कुछ समझ में आई? कुछ संतुष्टि हुई? ये तो नहीं कहोगे कि आचार्यों ने क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब मेज़र तो उन्होंने वही बनाया, लेकिन अब ये जो भावना द्रव्य बदले और उससे ये जो फलश्रुति बदली, थेरेपेटिक इफेक्ट रेंज बदला, उस पर अभी साइंस नहीं पहुंचा है। उसके लिए अभी जो सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो अभी नहीं बने हैं, सर्टेनली नहीं बने हैं, जो रिवील करें कि अगर हमारा भावना द्रव्य बदल गया तो फाइनली क्या है, मेजर तो वही रहेगा ना। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, होमो सैपियंस नाम है, अफ्रीका से लेकर चाइना तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर के नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका तक, कनाडा तक, आर्कटिक रीजन्स तक, सबका ह्यूमन कहलाने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं, लेकिन देखने में कितना अंतर है, वो क्यों है? जेनेटिकल कैरेक्टर एंड एज वेल एज द फेनोटिपिकल कैरेक्टर बोथ। तो हमारी भस्म सब एक कलर में बनी, राइट? हमने भस्म बनाया, सब एक कलर में बन गई। एक पर्टिकुलर भस्म जो है, चंपक वर्ण में हमारी सारी स्वर्ण भस्म बन गई, कृष्ण वर्ण में हमारी सारी रजत भस्म बन गई, श्वेत वर्ण में हमारी सारी बंग भस्म बन गई, धूसर वर्ण में हमारी सारी ग्रे कलर में हमारी सारी नाग भस्म बन गई। लेकिन जिस मेथड से बनी है और जो भावना द्रव्य उसके अलग अलग हैं, राइट, उनके कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे। और तब तक मैं होंगे कहूँगा जब तक कि कोई एनालिसिस नहीं हो जाती है। एग्जाम्पल ठीक आया? सब ह्यूमन बीइंग है ना, वेरिएशन कहाँ है? जेनेटिकल लेवल पे है। जीन्स कैसे बनते हैं? प्रोटीन से। डीएनए किससे बना है? प्रोटीन से। वही है ना, प्रोटीन ही है ना, सीक्वेंस सब खाली बदला है क्रोमोसोम्स के। तो हमारी भस्म तो वही है। कोई सी भस्म का नाम ले लो, मेरी मार्क्सिक भस्म थीसिस है तो मैं बार बार मेरे मुंह में मार्क्सिक भस्म ही घुसा रहता है हमेशा, मैं उसको हमेशा निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरी एमडी और पीएचडी दोनों मार्क्सिक भस्म पर है, तो एमडी आरबीआई तो पीएचडी, तो हमेशा मुझे एग्जाम्पल मार्क्सिक भस्म ही याद आता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तमाम दूसरी भस्मों का भी नाम लूँ।
बनाने के कितने सारे मेथड्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली कलर तो शास्त्र ने अलग नहीं बताया ना। ओके, जब कलर वही है तो कंपाउंड वही है केमिकली मेजर, ठीक है ना। और फिर ये जो हमारी डिफरेंट प्रोसीजर्स थी वो डिफरेंट थेरापेटिक इफेक्ट वाली थी, डिफरेंट डिजीजेस पर थी। इसलिए आचार्यों ने 10 मेथड, 12 मेथड, 8 मेथड बना के दिया और फलश्रुति में अलग अलग प्रकार बताए। तो ये आपको सोचना होगा, ये आपको समझना होगा। और वहीं हेस्ला आपको आंसर दे देता है कि फाइनल भस्म बनने के लिए जितना भी आपको उस केमिकल कंस्टिट्यूएंसी जो चाहिए, और वो कलर, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, क्या कलर, वो कलर इंडिकेट करता है क्या, एक पर्टिकुलर केमिकल कंस्टिट्यूएंसी। तो वो चाहे जितना स्टेजेस, फिर से इसको पढ़ लीजिए और इस किताब में पढ़ लीजिए, मलवालन की किताब में पढ़ लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री की किताबों में पढ़ लीजिए, हेस लॉ, थर्मोडायनेमिक्स। चलिए मुनीसा, गूगल बाबा को खोलिए आप, फाइनल के तीनों गूगल पर पढ़िए, हेस लॉ निकाल कर कोई भी एक आदमी ज़रा जोर से पढ़िए, हम कुछ नई डिफिनीशन हमको मिल जाएगी, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। वही है, लेकिन एक, अरे भाई ठीक है वही है तो हो सकता है ना, ज़रा देखें, ये लोग भी तो देखें क्या है। चलो पढ़ो, सिद्धार्थी पढ़ो, चलो चलो पढ़ो हेस लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, रुको एक एक चीज़ मुझे लिखने दो ज़रा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि इसमें वेरिएशन है, वो मुझे एक्सप्लेन करना है आपको आज ही, आज के आज। हाँ ठीक, हीट एनर्जी चेंजेस, ठीक है, यस, केमिकल रिएक्शन के हिसाब से हीट एनर्जी चेंज होगी। हाँ, विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक, आगे, irrespective of the way to reactant form the product। यही पंच लाइन है आज की और पूरे पुट के 10 दिन की क्लास की। दिस इज द ओनली पंच लाइन। क्या लिख रही है इसको ढंग से, irrespective of the irrespective of the way to the reactant react to form the product। अब जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था उसका उत्तर मिला कि नहीं मिला? और इसको और डीपली सोचिए, ये तो एक बहुत प्राइमरी नॉलेज है, इसको और डीपली सोचिए और डीप साइंस में जाइए और वहाँ तक इन्वेस्टिगेट और एनालाइज करिए कि आचार्यों ने 12 मेथड क्यों दिए। एक आचार्य नहीं, 12 मेथड, 10 मेथड दे दिए भस्म बनाने के। कलर वही बताया कि कलर वही रहना चाहिए, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पेस में कलर चेंज है, लेकिन थेरापेटिक एरेना एकदम बदल गया है, राइट। आता है कि 4 तरीके की, 4 वर्ण की नाग भस्म भी मिलती है, पारद भस्म के ही 4 कलर बता दिए, बताए ना अलग अलग मेथड से, लेकिन वो अलग अलग केमिकल कंस्टिट्यूएंसी है, बट जनरलाइज एक ही है। रस सिंदूर आपको रक्त वर्ण का ही होगा, रस सिंदूर आपको श्वेत वर्ण का नहीं मिलेगा, और रस कर्पूर आपको श्वेत वर्ण का ही मिलेगा, रक्त वर्ण का नहीं मिलेगा, है ना। नाग भस्म जनरली आपको धूसर वर्ण की ही प्रैक्टिस में मिलेगी, पीले रंग की नाग भस्म भी कहीं मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर उसकी केमिकल कंसिस्टेंसी बदली हुई होगी। और मैं इसको इस लिहाज से भी देखता हूँ कि वो बॉन्डिंग चेंज हुई है, केमिकल्स चेंज हुए हैं। जैसे कि सीरीज ऑफ द एंटीबायोटिक्स चलती है, थेरेपेटिक इफेक्ट सबका है, लेकिन अलग अलग रेंजेस हो जाते हैं, कलर भी बदल जाता है। तो ये जो कल भी एक बात मैंने उठाई थी लास्ट क्लास में, यस, हाँ, नहीं, यहाँ मैं हमेशा रोकता हूँ। भावना द्रव्य बदलने के लिए मैं हमेशा किसी को प्रोत्साहित नहीं करता हूँ, और करता भी तो ये कहता हूँ कि आप भावना द्रव्य बदल लीजिए तो पूरी टॉक्सिसिटी स्टडी करिए, क्योंकि भावना द्रव्य का बदलना अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अपने मन से, जैसे कि ताम्र शोधन के लिए हुआ कि भाई तैले तकरे गवा मूत्र कुलत को आते कि क्यों लिया जाए, इसी यूनिवर्सिटी में 35 बार पानी से बुझाया गया,
कोई ब्रिटलनेस ही कर रही है तो लो ताम्र को हमने 35 बार पानी में बुझा दिया डेड हॉट करके, और 35 बार इधर से 7-7 बार अपने इन 5 लिक्विड से बुझाया और भस्म बना दी। ब्रिटलनेस तो ठीक थी, लेकिन जो पानी से 35 बार क्वेंच्ड थी ताम्र भस्म, उससे जो बनी उसके सारे एनिमल में सारे चूहे मर गए और इसके वाले बचे रहे। तो भावना द्रव्य बदलने का आपने बड़ा अच्छा किया क्वेश्चन डॉक्टर सिद्धार्थ। भावना द्रव्य बदलने की एडवोकेसी मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। भावना द्रव्य बदलने का मन है तो एक पीएचडी प्रोडक्ट ले लीजिए, पीएचडी में भी नहीं होगा, एक पूरा प्रोजेक्ट ले लीजिए और पूरी फिर आप जैसे रूल 158B रूल रेगुलेशन में है कि सेफ्टी रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो जब सेफ्टी यहाँ रिक्वायर्ड रहेगी और प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस और द एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस यहाँ रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि आपने फंडामेंटल चेंज किया है। तो आप पहले वो पूरा प्रोजेक्ट करिए सारे फेजेस के और क्लिनिकल स्टडी सारी करिए, तब एक किताब लिखिए कि हमने ये भावना द्रव्य बदल दिया। इतना काम करिए तब भावना द्रव्य बदलिए। भावना द्रव्य बदलने के लिए मैं बिल्कुल भी एडवोकेसी नहीं करता हूँ, और ये प्रूवन भी है कि जहाँ जहाँ लोगों ने भावना द्रव्य बदला वहाँ वहाँ वो गुण द्रव्य में नहीं मिले। तो इसलिए अगर आप अभी तो आपको रिसर्च ये करनी है कि जो है अभी उसी में चलिए, नया तो उसी को अभी वैलिडेट करिए, नया और ढूंढ लीजिएगा। अभी एक थीसिस हो रही है मैग्नीज भस्म बनाने की। क्या हो रही है? मैग्नीज भस्म आपने सुना? किस वर्ग में रखेंगे जो क्लासिफिकेशंस हैं? यस, इट इज़ गोइंग ऑन, पीपल आर इन द कंसल्टेशन, दे आर प्रिपेयरिंग मैग्नीज भस्म, नॉट मैग्नीशियम भस्म, मैग्नीज भस्म। क्यों? अभी शायद मुझे याद रहेगा, आप लोग मुझे अगर मैं न बताऊं क्लास में थैंक यू करने लगूं तो पूछ ज़रूर लेना कि मैग्नीज भस्म क्यों बन रही है, नहीं तो फिर भूल जाओगे तो नुकसान मेरा भी होगा कि मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, बट यू आस्क कि मैग्नीज भस्म के ऊपर ही प्रोसेस क्यों चलाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है मैग्नीज भस्म। देयर इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, ये हैस लॉ हुआ, तो ये समझ में आई। अब बात आती है कलर के ऊपर। आचार्यों ने, कितना मिनट बाकी है? 15 मिनट ना? 15 मिनट में दुनिया जीत लेंगे। ठीक है। सो कलर, अच्छा कलर, कल्पना कलर क्यों दिखता है? ये कौन सा कलर है जो मैंने पहना है? शर्ट ग्रीन है। अब पता नहीं बेबी ग्रीन, सी ग्रीन, पिंक ग्रीन, पता नहीं कितने कलर हैं दुनिया में। 85,000, मोर देन 85,000। चेन्नई में एक साड़ी बनी थी, उसमें 85,000 क्यूबिक थे 7 मीटर की, और उसमें 85,000 कलर्स थे। शिवाक्षी सोच रही है कि वो साड़ी को मुझे ख़रीद लेना है। हाँ, वो डिज़ाइनर साड़ी थी। यस, 85,000 क्यूब, 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब था। एक्चुअली हम ऐसे एग्जांपल्स ढूंढ के ले आते हैं जब हमको इन चीज़ों को बताना होता है। तो ये एग्जांपल मेरा आज का नहीं है, 2002 का है, जब मैं जामनगर में इसको किया था। तो ये वहाँ से मैं उठा के लाया था, मुझे उस क्लास की याद आ रही है मैंने फर्स्ट टाइम की, कि समुद्र के अंदर 55,000 कलर हैं जो आपने देखे ही नहीं अभी। बिलो द सी बॉटम हाउ मेनी कलर्स। जब मुझे वर्ण परीक्षा को, जब भस्म की वर्ण परीक्षा में बात करनी थी आज के 22 साल पहले, तो मैं ऐसे नहीं क्लास में गया था कि ये काले रंग की होगी, ये चंपक वर्ण की होगी, ये श्वेत वर्ण की होगी, ये धूसर वर्ण की होगी। इतना बताने में कितना लगता है टाइम? 5 मिनट। मैं ये सिद्ध करने की कोशिश किया था और अभी भी करता हूँ कि इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है। समुद्र के अंदर 55,000 रंग हैं, दुनिया के रंग हैं जो आप देखे नहीं होंगे। अभी आप चलिए, आप कहीं भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो कलर्स कैसे दिखाता है? सब यही आता है ना, पिंक, बेबी पिंक, सी ग्रीन, ये ग्रीन, वो ग्रीन, पता नहीं क्या क्या कलर्स। और हर कलर हमें क्यों ऐसा दिखता है? अब ये ब्लू है या कोई कलर, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि हमें ये कलर, ये अगर आप इसको मान लो कि सी ग्रीन कह रहे हो, मान लिया मैंने भी कि सी ग्रीन है या जो भी है, ठीक है, वो क्यों सी ग्रीन है? आप इसको ब्लैक क्यों नहीं कह रही हैं? आपको वही रिफ्लेक्ट होकर आई में आ रहा है।
वो रिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है? दिस रिफ्लेक्शन इज डिपेंडिंग ऑन, वैशाली मैडम, मटेरियल पर। मटेरियल इज डिपेंडिंग ऑन, तब तक पहुंचो, मटेरियल इज डिपेंडिंग ऑन, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि सारे विश्व के जनसंख्या मानव है और मानव इज डिपेंडिंग ऑन प्रोटीन, क्रोमोजोम, डीएनए और प्रोटीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायरोसिन, ऐसे ही सब है ना। ये मटेरियल किस चीज़ से बना है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किस चीज़ के बने हैं? एटम से बने हुए हैं। मतलब क्या? एक कंस्टिट्यूएंसी। मुझे वर्ड क्या लेना है? कंस्टिट्यूएंसी। और वो कंस्टिट्यूएंसी रिस्पॉन्सिबल है, जब उस कंस्टिट्यूएंसी पर लाइट आती है, वो जब रिफ्लेक्शन जाता है तो वो कलर दिखाई देता है। तो जब तक वहाँ पर ये कम्बिनेशन नहीं आएगा, किसका? क्यूप्रिक सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड का मार्क्सिक भस्म एक पर्टिकुलर रेशियो में, तब तक मार्क्सिक भस्म पक्व जंबूफल छाया, या वो लौह भस्म पक्व जंबूफल छायाम नहीं दिखाई देगी। ठीक है? तो वो जब आपको वो पार्टिकल, वो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वही कलर आपको दिखाई देता है। तो ये थी वर्ण परीक्षा का आधार। ऐसा वो खाली रंगीन बनाने नहीं गए थे हमारे आचार्य कि ये रंग देख लो। वो एक एश्योर कर रहे थे कि ये होगी केमिकल कंस्टिट्यूएंसी तो ही वो कलर आएगा, और वो कलर जब आएगा तो वही मानव शरीर के लिए हितकारी होगा। That particular chemical constituency in that particular color will be absorbable and assimilable to the human body and will work under the normal physiology. It will crack the pathology, right, and show the therapeutic effect. And all these business are being done by normal condition. All these business are being done by enzyme, proteins, hormones, basically the trace elements, right? And trace elements are always where? Everywhere in the whole system of the human body. And this is meant of mostly the cytochromes made of the manganese, made of the manganese. जोर से बोलो कि सुनाई दे रहा है? हाँ? अक्सर ये कहा जाता है कि जो भस्में हम देते हैं और जो क्विक एक्शन में काम करती हैं वो सब्स्टिट्यूट करती हैं। अभी इस पर कोई साइंटिफिक एविडेंस इस लेवल पर जहाँ मैं बोल रहा हूँ आ जाएगा अगले 5-10 सालों में। पहले तो यही होता था ना कि भस्में तो जाती ही नहीं है, लेकिन कनाडा ने पेपर पब्लिश किया ना कि स्वर्ण भस्म माइटोकॉन्ड्रिया में पेंट्रेट की। पेपर देखा ना सेलुलर लाइन पे, ये देखा ना कि हाँ न्यूक्लियर लेवल पर भी गई, या वो जाते हैं, सभी जाते हैं। गुड। आप हम कनाडा में क्यों जाएं 2017 के पेपर में? अरे अपने घर में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में 1999 में सिद्धा इंस्टीट्यूट ने डॉक्टर जी गंगाधरन, दिस गंगाधरन इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल केरल ट्रस्टी, ही इज आयुर्वेदिस्ट। एक मीटिंग में हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ कि अरे गंगाधरन साहब भी आ रहे हैं। मैंने सोचा कि वो केरल वाले ही होंगे, देखिए वहाँ पे एक दूसरे गंगाधरन बैठे हुए हैं। ये जो आयुर्वेद वाले गंगाधरन हैं, कैमरा बोलने में दिक्कत हो रही है। आयुर्वेद वाले गंगाधरन हैं वो अपना स्मार्ट थोड़े से टीका उका लगाते हैं, और वो वाले जो गंगाधरन साहब थे सिद्धा वाले, वो बिल्कुल। तो मैंने कहा ये गंगाधरन, हाँ। तो मैं तो सोच रहा था ना जैसे होता है कि भाई हाँ ठीक है, रश्मि वहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं, रश्मि से मिलना है, रश्मि का वाबा लेना है या सीमाक्षी का वाबा लेना ही है अभी थोड़े दिनों बाद, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है सिर्फ, तो चलो वाबा लेना है। तो 2 लड़कियाँ हैं, तो रश्मि के नाम पर पता चल रहा है कि रश्मि गुप्ता का इंतज़ार हो रहा है और सामने रश्मि सिंह आ रही हैं, या रश्मि गुप्ता ही 2 हो गई हैं। तो एक होता है किसी बहस में होता है कि रश्मि गुप्ता है, तो इट हैपेंस। तो मैं ऐसे पढ़ा फॉर्चून, अच्छा गंगाधरन सर भी आ रहे हैं, वो मीटिंग में मैं देखा गंगाधरन और दूसरे गंगाधरन बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इन गंगाधरन को भी जानता था थ्रू हिज पेपर्स। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने लिंग चेंदूरम मतलब रस सिंधु, और वो पेपर पब्लिश किया था इन्होंने IJPS में, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, बैक 1999।
much before 2017 of the Kannada paper, कि जो लिंग चेंदूरम है, जो मरकरी है, वो स्प्लीन में है, लीवर में है, राइट? और किस किस लेवल पर है, किस किस मॉलिक्यूल, क्या क्या उसका पैरामीटर्स है, और किस तरह से वो एक्सक्रीट हो रहा है उस ज़माने में 1999। वो पेपर है आपके पास? मेरे पास है, ठीक है। तो मैं फिर गंगाधरन साहब को बहुत ग्रीट किया। एक वो मरकरी टास्क फोर्स की मीटिंग थी, इट वाज जस्ट लाइक वेरी अर्ली 2018। प्रोफेसर एस एस सावरकर was the chairperson and Dr. G.G. Gangadharan and I myself was the member to negotiate with the Ministry of Environment, Forest and the Climate Change regarding all the issues of the mercury exemptions. So very right person was from Siddha, Dr. G. Gangadharan, and of course from Ayurveda we too, Professor Savarkar and I myself. So then I appreciated Dr. Gangadharan after meeting. मैंने कहा, sir, I use your paper in my PG teaching and the doctorate teaching. You did on that time. तो अच्छा होता है, चीज़ें चलती हैं इस तरीके से। तो मैं बात कर रहा था किस पर, कलर पे। और कलर रिफ्लेक्शन के लिए आपको ये मिलता है द परसेप्शंस ऑफ कलर ऑफ द मायो थ्योरी। एंड इफ़ यू गो थ्रू दिस थ्योरी, द इंटेंसिटी ऑफ द इल्यूमिनेशन ऑल्सो अफेक्ट्स कलर परसेप्शन. The intensity of the illumination also affect color perception. At very low light levels, blue and green objects appear brighter than the red ones compared with then relative brightness in stronger illumination. अब जो भस्मों का जो हमारा कलर कभी कभी अलग हो जाता है बनाने में, हम देखते हैं कि सर ये थोड़ी सी कम लग रही है, ये थोड़ी ज़्यादा मैरून हो गई है, ये थोड़ी वाइटिश ब्लैक है, या ये थोड़ी ब्लैकिश वाइट हो गई है, बोलते हैं ना, वो सब क्यों होता है? ये आई एम जस्ट थैंकिंग द एंशिएंट आचार्यस who observed these colors and their chemical constituency in such a minor way. We not thanking, I am indebtful to all those who gave this philosophy to us. And that is very true even in the 2023. Go through this Mayo theory of the color perception and you will get every word is applicable to your Varn Pariksha of the Bhasm. And that Bhasm is coming out from the Put. And Put is coming out from the Hess laws of the thermodynamics. The whole business is clear to you? The whole business is this much. No doubt, no question, how many methods, how many puts, what are the ingredients. Point is this color of the bhasm. There is the myothesis. And this is the only, not only the constituency or the illumination depending on the molecules or the particulars, but this is also depending the psychology of the color. Many things here. Go through it. And then you will understand, and then this particularly, the physical pharmaceutics. And what I have some books for you, and if this science will be applicable, then this is the book. What's the heading? Have you gone through it? Have you seen it? This I referred to use in my previous classes, right? Sometimes some other assignments not allowed to take classes in a spirit which is required. हाँ, मुझे याद आ रहा है कि एक 30 सेकेंड में बोलूँ, when I was in जामनगर, प्रोफेसर R.R. द्विवेदी was one of the best teachers. उनके लिए फॉरेन के भी लोग कहा करते थे कि प्रोफेसर द्विवेदी इज़ नोइंग सब्जेक्ट इनसाइड अप, अपसाइड इन, नो, इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, अपसाइड डाउन, डाउनसाइड अप. दैट ग्रेट कमेंट. मैं हमेशा इस कमेंट को याद करता हूँ. लेकिन जब वो डीन हुए IPGTR के और हम नए लेक्चरर्स ऐसे ही कभी एक जगह बैठे रहते थे, तो आए एक बार, वो बोले एक टीचर के हत्या थाई जाए छे, गुजराती में एक टीचर की हत्या हो रही है, मुझे डीन बना दिया गया है और मैं पढ़ाई का काम क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, तो एक टीचर नू हत्या थाई जाए छे. तो वही हाल हो जाता है जब आप चीफ प्रॉक्टर बनते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो आपकी टीचिंग ख़त्म होती है फिर. तो ये
this nanoscience and the nanotechnology. This whole book is very much applicable to you. And see, people always laugh that the government is not doing anything. Government is doing everything, we are not doing anything. हाँ कुछ बोला मैंने क्या? Government is doing everything what is required. The Ministry of Ayush is doing everything which is required to answer the every type of the questions, right from the liver toxicity to the ashwagandha toxicity of the Dr. Abies Philip to the all Robert Sapir or anyone else who raised the question or the finger on the Ayurveda. Ministry is replying. But this is we who are not knowing how what is going on in Delhi. We are must गंगा घाट की आरती देख के आते हैं जैसा समेत घाट पे हैं, ठीक है. सो सी हियर द मोनोग्राफ देखा था इसके पहले. ऐसे 5 वॉल्यूम्स निकाले हैं, मोटे मोटे 50 रसदियों पर CCRS ने 5 वॉल्यूम्स. एक भी वॉल्यूम देखा है किसी ने? डाउनलोड किया है किसी ने? मेरी अलमारी में बंद है. कभी कोशिश की उनको निकाल के देखने की? all 5 volumes I have, all the safety profiles, all the toxicity study. इसलिए मैंने कहा कि आज कुछ ले चलते हैं. See here, ये आर्सेनिकल्स पे है. रसमाणिक क्या नहीं चाहिए आपको इसको. इस किताब के ऊपर देखिए ये क्या नहीं किया गया है. कितना वर्क लेबर सब कुछ तो किया है मिनिस्ट्री ने, CCRS ने. आप नहीं जानते हैं तो किसका दुर्भाग्य? मेरा. हाँ, हम टीचर हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं ना. आप रसमाणिक आपको पढ़ना होगा तो आप एक मार्केट में जो किताब अवेलेबल है उसको उठाएंगे, 2 पन्ना रसमाणिक के पढ़ लेंगे, आप रसमाणिक के विद्वान हो गए. और ये जो 250 पेज छाप करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बैठी है रसमाणिक के ऊपर, वो आप देखेंगे भी नहीं. NCSM अभी कह रही है ना कि हाँ रिसर्च पेपर बताइए, ये बताइए, ये दिखाइए. आपको हर भस्म के ऊपर इतना इतना मटेरियल करके रखा हुआ है. आपके 2 वॉल्यूम्स API के आ गए हैं. इस किताब का नाम क्या है देखा था आपने? 2014 में छपी है, बहुत पहले. एविडेंस बेस्ड सेफ्टी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन. और जानते हैं इसमें 5 मेंबर्स एम्स दिल्ली. अब तो एम्स में भी कैटेगराइज करना पड़ता है ना, बहुत सारा स्टेटस हो गया है. तो एम्स दिल्ली के फार्माकोलॉजी के हेड प्रोफेसर मुलिक, DRDO ग्वालियर के हेड प्रोफेसर फिलांसपो, ICMR का डिप्टी डायरेक्टर विजय कुमार, छोटा सा एक आयुर्वेदिस्ट भी जिसका नाम आनंद चौधरी है. तो वी आर द एडिटर्स ऑफ दिस बुक. वी इवेल्युएटेड एवरी डाटा. And my signature is not important, not so significant, but the signature of Professor Mulik, but the signature of Professor Flora, signature of Dr. Vijay Kumar of the ICMR is having heavy weight. They are satisfied, then this book is in the public domain. And this is all about the safety profiles. There are the 14 formulations here. Right from Basant Kusmakar Rus to the Mahayogaraj Google. 3rd पेपर है ना. Right? So these things are in the real sense which required the PG and the doctorate teaching in this caliber, in this way. Then the class is the class at the postgraduate and the doctorate level, right? And as I said you in the last instruction, the dictionary of कितने लोगों ने परचेज की? एक ने भी नहीं की. एक तो मेरी इज्जत रखने के लिए बता दो, हाथ खड़ा कर दो, झूठा ही सही. हाँ, एक गाना है ना, क्या है वो गाना? सिद्धार्थ बताते हैं इन सब गानों को. तो क्या है गाना वो सिद्धार्थ? पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले या कर दे, क्या है? कर ले. झूठा ही सही. तो झूठा ही हाथ उठा दो कि हाँ हमने ये किताब खरीद ली है. लेनी है ना? ओके, वी हैव डिसाइडेड. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, यू हैव डिसाइडेड टू टेक इट. थैंक यू. एंड सी, नॉट ओनली द टेक्स्ट बुक्स. ये इनमें से तो कोई टेक्स्ट बुक नहीं है ना.
नहीं है ना? सी दिस इज अ वेरी स्पेशल बुक. व्हाट इज दिस? देखिए इसका नाम पढ़िए जोर से, फिर मुझे वापस कर दीजिए. शिवाक्षी को दो, शिवाक्षी को दो. ये इसका मतलब समझाए, तुम भी समझाओ. हाँ, क्या है इसका मतलब? क्या है इसमें? इसमें इंडियन, हाँ खोल के देखो इसमें क्या है. देखो फाइनल के देखो, बताओ इसमें क्या है. प्रिस्क्रिप्शन. द वर्ड इज व्हाट हियर? प्रिस्क्रिप्शन. जो ये आईपीसी, तुम लोगों में से एक ने भी आईपीसी नहीं ना अभी अटेंड की है? तुमने की ना? अरे अभी तो तुम लोग गई थी, बड़ी फजीहत में फंसी थी नागपुर में, लेकिन तुम लोगों ने उसका प्रेसिडेंट का एड्रेस सुना इनॉग्रल सेशन में? ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस का वॉल्यूम्स है आईपीसी के. बैठ जाओ. गुड. चलो एक चीज़ तुम लोगों ने अच्छी बताई कि हमारे सजेशन पर तुम लोग आईपीसी गई नागपुर में. अगली कहाँ है? वहीं डिक्लेयर हो जाता है. खैर ठीक है, हम लाइफ मेंबर हैं तो हमारे पास आएगी सूचना, ब्रोशर आएगा, तब हम बता देंगे इन लोगों को कि यहाँ हो रही है. हाँ, तो ये उनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस हैं. जैसे होता है ना इंडियन साइंस कांग्रेस में प्राइम मिनिस्टर की जो एड्रेस है वो पूरे समकालीन साइंस को लेके चलती है, 3 जनवरी ऑफ एवरी ईयर. इन द सेम वे हियर इन द आईपीसी, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, आप इनके एड्रेसेस को अगर पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंशियल प्रिस्क्रिप्शन, तो ये बुक भी मुझे मार्केट में थोड़े मिली है. ये भी आप फर्स्ट पेज पर जाइए, देखिए किसी ने मुझे दी है. फर्स्ट पेज पर देखिए लिखा हुआ है, क्या नाम है? अरे इधर देखो, NB वृंदावनम. और ये दोनों आयुर्वेदिस्ट हैं, डाबर को बहुत ऊंचाई तक ले गए. राइट? तो ये जब मैं डाबर का टूर लेके गया था जामनगर से, तारीख देखो उसमें क्या पड़ी हुई है. अरे ऊपर देखो, 5 अप्रैल 2000, जनवरी 2000 में मैंने जामनगर ज्वाइन किया था लेक्चरर. अप्रैल 2000 में मैं टूर लेके निकला, वहाँ ये किताब मुझे दी गई थी. आप जाते हैं तो क्या लेके आते हैं? दवाई. मैं गया था तो मैं क्या लेके आया? ज्ञान. ये मुझे कहना था आपसे. आप जाते हैं तो ध्यान किस पर रहता है ज़्यादातर लोगों का? सैंपल में क्या मिल रहा है. मैंने देखा ये किताब लाइए, इसको मैं ले जाऊंगा. राइट? सो नाउ आई थिंक now you understand the what is put and why I say कि this is the 50% of the Rasashastra. So next I am willing to, one topic I have taken on the Rasashastra. Of course it is very long, 9 interaction, and then I am willing to have one interaction on the any title of the Bhashya Kalpana, then again in the put Rasashastra, then again into the Bhashya Kalpana. This cycle will go on. And of course सी वॉज टॉकिंग, डॉक्टर रश्मि सिंह के SOP. मैंने कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं, मैं रूल रेगुलेशन और SOP भी थोड़ा सा रूल रेगुलेशन आ जाता है ना उसमें भी. SOP ऑफ द एनी कल्पना, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट SOP इज़ द रूल रेगुलेशन. तो कुछ अच्छा रसशास्त्र भैषज कल्पना में आपसे इंटरेक्शन करने का मेरा मन है, क्योंकि बाहर तो CMEs में मुझे रसशास्त्र भैषज कल्पना में, रसशास्त्र और भैषज कल्पना के विषय छूने ही नहीं दे रहे हैं. खाली बस वही क्या हाई-फाई judges, researches and this and the magazines and the journals and the rule regulations. अरे भाई बेसिकली हम रसशास्त्र और भैषज कल्पना के व्यक्ति हैं. रूल रेगुलेशन तो बाद में ना इनकलकेट कर लिए, क्यों है कि नहीं? जब हम MD आयुर्वेद रसशास्त्र में आपकी तरह थे तो भी रूल रेगुलेशन पढ़ते थे. ओके, थैंक यू एवरीवन.